it's always the hunger to be the best in the market. लोग मार्केटिंग को सेल्स समझते हैं, सेल्स को मार्केटिंग समझ रहे हैं। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपके लिए की हैं, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। What is the biggest myth that you have come across when it comes to sales and marketing? लोगों को यही नहीं पता कि सेल्स और मार्केटिंग अलग अलग चीज़। आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, उसके बाद में आप सॉन्ग इंडस्ट्री में भी वर्क कर रहे हो। मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। Hello and welcome to another episode of Fadas Unplugged, the podcast where we discuss careers, unravel business mysteries, and try to connect the classroom with the with the corporate world. Myself, Amit, I'm your host, an MBA second year student at RDIS, specializing in marketing. So today's topic, today we are going to talk about two biggies of the business world: sales and marketing. Are they allies? Are they frenemies? Or are they just two sides of the same coin? So we need some help to decode this. And to help us with this, we have a very special guest with us, Mr. Archit Gulati sir, the founder of Matches Production. With over a decade of experience leading sales team and running successful marketing campaigns, along with he has also been doing tremendous work in CGI videos and making ad films. And wait, this is not it. He has also left his mark in the music industry, working with the likes of Neha Kakkad, Tony Kakkad, Yo-Yo Honey Singh, you can say. So, the least I can say is he has been doing a tremendous work. It's my absolute honor to have you on the podcast, sir. Welcome. Okay, so actually, this question was not in my list initially, but seeing through your work and the kind of efforts that you're putting in, the sort of efforts, the sort of impact you are having in the marketing, I need to ask this. I'm sorry, but Go I ahead, need go to ahead, ask for this. sure, go ahead. What's the reason behind this energy? Like आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, उसके बाद में आप सॉन्ग इंडस्ट्री में भी वर्क कर रहे हो। मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, भाई मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे तो आपके पास भी हैं, कहाँ से टाइम निकाल रहे हो सर आप इतना? Yeah, so basically, it's always the hunger to be the best in the market, or we are always up for exploring more and more and more and more things. Like being it at this state, or like being a founder of the company, still I think I have not achieved everything. Still, I feel there is a lot more left to explore for sure. मतलब I always say to everyone that you are not, never you can never say that like I have done everything, I have completed everything, yeah, I know everything. No one knows everything at all, bhai. Honestly, if I am being very honest with you, every day, trust me, every day we are learning. Even in the office, even if there is some intern coming in the office, कोई ना कोई लेसन हमें वो भी रोज़ सिखा जाता है। कोई उसकी एक ऐसी बात होती है कि वो हमें सिखा जाती है। तो वो एक हंगर है कि हमें बेस्ट बने रहना है और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहनी है। इसलिए हम जितनी जगह अपनी छाप छोड़ सकते हैं, वी आर ट्राइंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर, फॉर श्योर। सर ये जो मोटिवेशन है वो कहाँ से ले रहे हो? मतलब हंगर तो जैसे आप विराट कोहली वाली हंगर हो गई है कि मतलब हाँ, कि मतलब यू जस्ट नीड टू कीप अचीविंग एंड अचीविंग। हाउ डू यू पुश योर सेल्फ? लाइक हर दिन होता है, जैसे कि मैं जिम जाता हूँ, मेरे को कभी कभी फील होता है नहीं यार आज नहीं जाना मुझे, सो आई स्किप दैट डे। हाउ डू यू मैनेज ऑन दोज डेज कि नहीं भाई आज भी करना है, एटलीस्ट आई नीड टू बी देयर? यार सो बेसिकली जैसे आपने बोला कि आप जिम जाते हो तो आपको कभी कभी फील होता है कि नहीं आज नहीं जाना, तो हैं तो हम भी इंसान भाई। ठीक है, कभी कभी हमारी भी वो मॉर्निंग्स होती हैं कि हमें सुबह सुबह उठ के फील होता है नहीं यार आज फुल एनर्जी नहीं है, आज ऑफिस जाने का दिल नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि भाई हम कंपनी चला रहे तो हमारा रोज़ जाने का मन करता है। कई दिन ऐसे होते हैं, लोज डेज सबके होते हैं फॉर श्योर, बट वही है, वो एट दी एंड वही है कि यार हमें लगता है कि एक भी दिन अगर नहीं गए तो हम पीछे हो जाएंगे एक दिन। वो एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार अगर एक भी दिन मिस कर दिया तो हम एक दिन पीछे हो गए। तो वो एक हंगर है कि वो बेस्ट बनना है। जैसे आपने विराट कोहली का एग्जांपल दिया, तो आज क्रिकेट की फील्ड में हम जाते हैं तो विराट कोहली का लोग नाम लेते हैं ना, वो एक ही नाम है जो चल रहा है। तो जब तक वो माचेस प्रोडक्शन से एक ही नाम नहीं बन जाता तब तक हम लगे रहेंगे ऐसे ही भाई कि हाँ मार्केटिंग माचेस, वो हमारा एम है। जिस दिन मतलब वो उसके बाद कुछ और एम हो जाएगा, बट हाँ अभी के लिए वो एम है कि वो बेस्ट बनना है इंडस्ट्री। This is really inspiring, to be very honest. I mean, the sort of motivation, and you can have the motivation, but I think motivation can keep you going for a very short period of time. Right. After that, you need to be disciplined. फॉर श्योर डिसिप्लिन इज द की भाई, 100%। मतलब डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपके लिए की हैं, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी कह लो, आपके पास
you have seen, you're going to see in your coming future, you're going to see a lot of people which has a lot of money from their parents and all of that, still they are not successful. Reason, discipline नहीं आता लोगों में. पैसा तो है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है. सो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, कुछ करना है, तो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है. आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हमने 18 साल में स्टार्ट करा, 19 साल में हमने कंपनी खोल दी. समझो, वो एक टाइम लगता है. हमने भी जॉब करी है, बहुत जगह जाके सीखा है, दर दर जाके ठोकरें खाई हैं, जाके चीज़ें सीखी हैं, तब जाके हम आज इस पॉइंट पे पहुँचे हैं. तो वो कोई उसका शॉर्टकट नहीं है भाई, वो कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी आपको. Very rightly said. There is no replacement for the hard work you need to put in. Okay, let's dive right in Right. more into the topic. So there's a lot of confusion going on and a few myths राइट. around marketing and sales. लोग marketing को sales समझते हैं, sales को marketing समझ रहे हैं. You know, it goes on. I too, even being a marketing student, I too have faced this at a certain point of my life where I wasn't able to decode the difference between sales and marketing. So, what is the biggest myth that you have come across when it comes to sales and marketing? And आप इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाओगे कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? यार, तो सबसे पहले तो इफ़ वी गो हेड विद दिस, द बिगेस्ट मिथ इन द मार्केट इज पीपल थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग इज द सेम थिंग. ट्रस्ट मी, दैट्स द बिगेस्ट मिथ. लोगों को यही नहीं पता कि सेल्स और मार्केटिंग अलग अलग चीज़ें हैं. लोगों को लगता है दोनों चीज़ें एक ही हैं. आई बिलीव, एंड दैट्स द फैक्ट ऑल्सो, लाइक दे आर नॉट, दे आर पार्टनर्स बट दे आर नॉट ट्विन्स. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस. दे आर पार्टनर्स. वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, तभी वो चीज़, एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है. बट वो भाई बहन नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है. वो एक ही फैमिली से हैं बट एक ही चीज़ नहीं है. दैट्स द मेन थिंग. इफ़ यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट, it should have the right marketing in place. If you want to sell the product, it should have the right marketing in place. And even if you have done the right marketing for the product, but the sales team said कि let it be, marketing तो अच्छी हो गई, बिक जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता. हर बंदे को अपना काम अपने पर्टिकुलरली करना पड़ेगा. मार्केटिंग टीम को जो मार्केटिंग कर रहा है उसको मार्केटिंग उतने तरीके से करनी पड़ेगी कि वो सेल्स टीम को हेल्प करे. इट्स अ प्रोसेस. जैसे I'll tell you example, a small example which most of the people will relate. Like nowadays, Gen Zs go to gym. They take two kind of things: pre-workout, post-workout, right? Like on pre-workout, you take pre-workouts if you go to gym, and post-workout, you take protein. So it's the same way scenario. Like marketing is the pre-workout in the industry, and sale is the post-workout. If you are doing marketing, वो pre-workout के लिए आपका काम करती है, पूरी की पूरी बज़ बनाने के लिए. कोई भी ब्रांड है, अगर लोग, ये मिथ है, सेल्स के लिए बहुत बड़ी मिथ है कि लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो बिक जाएगा. तो फिर नाइकी, एडिडास, बड़े बड़े ब्रांड्स आप ले लो, वो बिलियंस ऑफ मनी लगा रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर. क्यों लगा रहे हैं? प्रोडक्ट बढ़िया है, नाम बना चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो मार्केटिंग की तो जरूरत ही नहीं, ऐसे ही बिक जाएगा. बट स्टिल दे आर स्पेंडिंग ऑन इट, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन मार्केटिंग. देयर इज सम फैक्ट बिहाइंड दैट ना. सो दैट्स द थिंग. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. डोंट अंडर एस्टिमेट एनी थिंग. सेल्स टीम के लिए, जो सेल्स टीम है उनका काम भी बहुत मुश्किल है, जाके बेचना चीज़ों को, और मार्केटिंग टीम का काम भी बहुत मुश्किल है. बट हाँ, वो ट्विन्स नहीं है, वो पार्टनर्स हैं. ऐसा लगता है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन Green द on the अदर other साइड. side, right. कि भाई तेरा काम आसान है, मेरा ही ज़्यादा मुश्किल है. बट यू रियली ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इट कि Right. लाइक प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट. सो कैन आई से कि जो प्री वर्कआउट है वो मार्केटिंग है, एंड पोस्ट वर्कआउट है वो सेल्स है? Yeah, for sure. That's what I just said. Ki pre-workout is marketing completely. Ki marketing, first part is marketing. If you are launching one product, let's take example. You are into the industry. You bring up some product and you are launching that, right? You want to launch that. So the first part comes into mind is marketing. ठीक है. अब marketing की भी एक myth है. People think marketing is advertising. लोगों को लगता है बस मार्केटिंग तो एक लोगों को एडवर्टाइज करना है, कुछ तरीके से एडवर्टाइज कर लिया, बस वो है. लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है भाई. देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज बिहाइंड द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट. इट्स स्टोरी टेलिंग, इट्स स्ट्रैटेजी प्लानिंग, इट्स चूजिंग द राइट ऑडियंस. कि आपको इस ऑडियंस के लिए अगर मार्केट करना है प्रोडक्ट, जैसे कई होते हैं कि आप लोअर टायर सिटीज़ के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो. देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड वी आर वर्किंग विद करंटली. सो देर इज वन ब्रांड कॉल्ड ब्लू हेवन, राइट? तो देयर टारगेट ऑडियंस इज लोअर 3 टायर सिटीज़, बेसिकली 2 टायर सिटीज़, 3 टायर सिटीज़. तो उनके लिए मार्केट करना, इट्स नॉट जस्ट सिंपल एडवर्टाइजिंग जो दूसरे के लिए भी कर सकते थे. उनके लिए मार्केटिंग करना, उनकी ऑडियंस जो है उस हिसाब से मार्केटिंग प्लान्स बनते हैं. तो देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज बिहाइंड द मार्केटिंग एज वेल. सो दैट्स द थिंग. So yeah, for sure, answer to your question, like marketing is pre-workout and sales is post-workout, for Very, sure. very clearly. So, the next question that I have is actually, you know, one of the major pain point of students, graduates. I too have come across this. So, you know, a lot of graduates apply for the marketing job. Right. They think they are going to be in the marketing sector. Right. You know,
do anything that comes in within marketing purview, but they find themselves doing door-to-door sales, cold calling. So there is a mismatch. So how can we ensure there is no such mismatch? And if you are ordering for poha, you get poha, not some idli or something. So how can we make sure of that? So if I take your example, like you said, you are ordering poha, you will get poha. You are ordering poha and you will get poha when you are not that hungry, when you are not feeling that famished. If you are feeling famished, if you are feeling very much hungry, you go to the restaurant, you ask पोहा दे दो, एंड वो कहेंगे पोहा में 15 मिनट लगेंगे, आप कहोगे कुछ भी दे दो क्योंकि आपको भूख लगी है. समझ रहे हो? तो वहाँ पे वो चीज़ें खराब हो जाती हैं. सेम वे इन द इंडस्ट्री, इफ़ यू आर hungry about the job, if you are desperate about the job, you won't read the JD ढंग से. If you go through LinkedIn, you see the opening in the company, right? And you read their JD. Of course, if being a part of the company, running a company, the company's main aim is to hire a person by hook or by crook. Even I want to hire a person. If I like someone, I want to hire him. लोग उसको जेडी के अंदर घुमा के लिखते हैं, उनकी हेडिंग्स थोड़ी सी हम प्ले अराउंड करते हैं, बट इट्स कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट द एग्जैक्ट थिंग समवेयर इन द जेडी. अगर वो आपसे डोर टू डोर सेलिंग कराना चाहते हैं तो वो उनके जेडी में कहीं ना कहीं मेंशन होगा. इट्स द पर्सन हु डोंट सी दैट इन द लाइक अर्जेंसी ऑफ गेटिंग अ जॉब, इन डेस्पिरेशन कि मेरे को तो ये जॉब चाहिए, उसके लिए वो ढंग से जेडी पढ़ते ही नहीं है. तो माई मैसेज टू द पर्सन, इफ यू आर विलिंग टू डू डोर टू डोर सेल्स, good for you. I'm not saying door to door selling is bad or marketing is good or marketing is bad, door to door selling is good. Both things are good. Just do what you want to do. And for that, if you are confused between JD as well, you go to interview, physical interview, just write the HR, just ask the HR, na. Go ask your questions to HR, like is it door to door thing or is it marketing? I don't want to do door to door thing, I want to do marketing. कोई आपको गलत hire थोड़ी करेगा. That's the simple case scenario. Read the JD carefully. Go ask right question to the HR. They'll give you the answer. Guys, breathe and read between the lines. Do not panic. Right. Sir की advice है. Right. If you want to do what you want to do. Right. Don't just run for it. I want the job. I want the job. Take a pause. Read it carefully. Because I think you have got the skill. So what is there to be panicked about? Like maybe अगर आपको आज नहीं मिल रहा but कल मिलेगा. Having patience is a very good thing. आज के टाइम में क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है यार. मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ना भाई एक चीज़ और है कि लोगों को ये लगता है कि ये जॉब हाथ से निकल जाएगी. एग्जैक्टली. बट आई विल टेल यू द ट्रूथ. दे आर स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन, है ना. राइट. बट आई विल टेल यू द ऑनेस्ट ट्रूथ. लाइक पीपल थिंक द जॉब इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम. हाउ मच द जॉब इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयर, ऑन द अदर साइड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू हायर सम एम्प्लॉयर. गेटिंग माई पॉइंट. अगर एक इंसान के लिए वो जॉब पाना बहुत ज़रूरी है तो वो एक कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय की ज़रूरत है उससे ज़्यादा है. तो आपको ये नहीं, आप लोग ये सोचते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट है, लोग डर के सोचते हैं अरे जॉब हाथ से निकल जाएगी क्योंकि वो किसी और को ढूंढ लेंगे. बट अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू हैव द राइट कॉन्फिडेंस इन यू कि मैं कर लूँगा, नेवर एवर लाइक beg in front of someone कि give me that job. They will give you that job because you deserve that. Okay, that's golden. So basically, if it sounds too glamorous, it probably needs a second look. Right. Okay, कुछ पढ़ाई की बातें हो जाए क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉडकास्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे भी रहते हैं, तो थोड़ा अदरवाइज वो नाराज़ हो जाएंगे. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग. सो इट्स अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट जो कि बहुत हेल्प करते हैं इन सेटिंग अप योर बिजनेस, या फिर अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो या फिर अपना पर्टिकुलर मार्केट भी सेलेक्ट करने के लिए. आई एम अ मार्केटिंग स्टूडेंट, सो आई एम एबल टू रिलेट विद दिस इन अ बेटर वे. बट लेट्स से आई एम अ लेमैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट नो, आई एम अ 10th फेल. सो आप मुझे प्लीज़ हेल्प करो अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि ये STP क्या है, मैं कैसे अपने मार्केट को समझूँ. Okay. So I'll tell you in layman words. So STP basically stands or for like you said, segmentation, targeting, positioning. But SPT is the main core framework that brand use to target the right audience and selling them the right product efficiently. That's the main framework. So basically, if I tell you briefly about both all of these three things, but the process that a brand follows, yeah, we follow to market the particular brand, like in segmentation, you will divide the different group of people. आपको जो डिफरेंट तरह के पीपल हैं आप उनको डिफरेंटली ग्रुप में डिवाइड कर देते हो.
सेगमेंट कर देते हो ऑडियंस को कि ये ऑडियंस इस तरह की है, ये ऑडियंस इस तरह की, आपने ग्रुपिंग कर ली बेसिकली डिफरेंट. उसके बाद कम्स टारगेटिंग. You target the right audience for your product. I'll give you one small example. Like I think people better understand with that. So if we talk about Nike, if you are selling a brand which is selling only one product, then you choose that audience. जो targeting वाला part है, then you choose the audience like that. कोई एक audience select करोगे. When we take example of Nike sells athlete wear as well as sneaker wear. Sneaker casual. You say like we buy sneakers for them. We are not the athlete like gym freak person, we buy sneakers from them, Nike. But there are on the other side, there are gym freak people, athletes who buy their sports wear. Getting my point? So Nike, when it comes to in point with this STP, so they divide their audience with segmentation. Then for the targeting, so they target the actual audience for the actual product. When they want to sell the athlete wear, they'll target the athlete, मतलब athlete वाली audience, sports wear audience, जो fitness freak वाले लोग हैं. When it comes to selling the sneakers, they'll target the Gen Zs, they'll target our kind of audience. So वहाँ पे वो targeting आपकी पूरा का पूरा रोल प्ले करती है कि आप right product, right target audience को बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो. Then comes the positioning. You have to, आपका segmentation हो गई, आपने targeting कर ली audience के लिए. अब आपको बात है कि आपके पास लोगों तक तो पहुँच गए, आप सही लोगों तक भी पहुँच गए. मैं कह रहा हूँ सब कुछ सही चला, आप सही लोगों तक पहुँच गए. बट आफ्टर दैट बहुत लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं कि वो जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है ना, वही सही नहीं कर रखी होती. आपने लोगों को बता ही नहीं रखा होता कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना है. गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आपने टारगेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास ऐड आई, या आपने बिल बोर्ड देखा, या आपने ऑनलाइन ऐड देखी, बट जो उस ऐड के ऊपर आप यही नहीं लोगों को बता पा रहे कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूँ. आपकी पोजीशनिंग उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप क्यों बाकियों से बेस्ट हो. मैं नाइकी की बात कर रहा हूँ, मैं एडिडास भी ले सकता हूँ, मैं अंडर आर्मर भी ले सकता हूँ, बट मैं नाइकी ही क्यों लूँ. नाइकी को ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बतानी पड़ेगी, वो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्यों वो बाकियों से बेस्ट है, वो उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए. तब मैं जाके उसको नाइकी को खरीद लूँगा. जब ये पूरे प्रोसेस एक एट द एंड प्रोडक्ट से सेल हो गया, तो ये तीनों प्रोसेस सक्सेसफुल हो गए. सिंपल. सो पर्टिकुलरली आपको अपनी मार्केट को समझना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी डिमांड है, आप मुझे चाहिए वाटर, नाउ यू आर सेलिंग मी कोका कोला, सो मैं क्यों ही खरीदूंगा भाई इस चीज़ को. राइट. 100% करेक्ट. मतलब अगर आप कोका कोला की भी बात कर रहे हो, तो कोका कोला भी अपनी दो ऑडियंस बना के चलता है. एक तो हो गई उसकी कोका कोला वाली ऑडियंस, जो मैकडोनल्ड्स के साथ, जो जेंजीज है, जो मैकडोनल्ड्स में उसको पता है फ्राइज के साथ कोक पियेंगे. बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कोका कोला का पानी भी आता है, वो हिमालयन वाटर भी एक तरह से. हाँ जी, मतलब वो दूसरी कंपनी के नाम से है, बट दैट कंपनी इज बैक्ड बाय कोका कोला. इट्स अ पेरेंट कंपनी, दैट इज कोका कोला. तो अब वो ऐड तो लेकिन कोका कोला के वहाँ से ही चल रहा है. तो कोका कोला पानी के लिए अलग ऑडियंस के लिए ऐड चला रही है, कोक के लिए अलग ऑडियंस के लिए ऐड चला रही है. पानी तो एक नेसेसिटी है ना. नेसेसिटी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 100 रुपये का पानी आप खरीदो तो वो नेसेसिटी नहीं है भाई. पानी आप कहीं से भी पी सकते हो, बट इट्स द थिंग इज कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस सिलेक्शन, दैट इज मस्ट, कि राइट ऑडियंस को राइट चीज़ पहुँचे. राइट. अब अगर आप विराट कोहली जो 1800 का वो कुछ 10 ml आता है ब्लैक वाटर समथिंग, तो वो नेसेसिटी नहीं है ना भाई, वो तो आपकी. हाँ, उसको विराट कोहली को उसके अकॉर्डिंग टारगेट करना पड़ेगा, और जो जो नॉर्मल पीपल है उसको उसके यार विराट कोहली को 1800 वाले पानी की ऐड किसी नॉर्मल बंदे के लिए चला दे, वो खरीदेगा ही नहीं ना. सिंपल सी चीज़ है. मतलब उसके लिए उसको एलीट्स को ही टारगेट करना पड़ेगा. तो वो बेसिकली ये पूरा फ्रेमवर्क है जो पूरा तैयार होता है, जिसको सब फॉलो करते हैं लोग भी, और भी फ्रेमवर्क्स हैं हम जो फॉलो करते हैं, बट दिस इज द मेन फ्रेमवर्क व्हिच वी फॉलो. बहुत बढ़िया. पैसे की बात कर लें थोड़ी सी. बिल्कुल भाई. The big elephant in the room. Everything we are doing is for the money. I'm doing MBA to, you know, have a good package. You're doing business to earn money, profit. Right. So, which is going to help me more? Which is going to help me earn more? Marketing or sales? So, यार ऐसा कुछ नहीं है कि which is going to help earn you more. It's completely up to your capabilities. Don't judge anyone's capability. It's the fact. It's the myth. Everything that it's the like. Rumors that go in the market, not the rumors, it's the fact actually, कि sales will get you instant money. Not instant money, fast money basically, if I can say. Like if you're in the sales job, you are getting your salary, let's say you started from 35,000. Let's take an example. And then you get extra compensation percentage for selling the product. If the company fixed you at 2%, 3%, if you sell this product, you will get 2% of the amount. Commission, basically, incentives. So obviously, it's a fast money making process. Sales. Whether if you come to marketing, it's like a slow making money process. It will take time. Gradually, you will grow, of course, step by step. But it's more consistent. I feel कि at the end, अगर कोई सेल नहीं हो रही होती कंपनी की, सबसे पहले सेल्स कंपनी निकाली जाती है, सेल्स टीम निकाली जाती है, मार्केटिंग टीम नहीं निकाली जाती. तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं. सेल्स आपको जल्दी पैसा बना के दे रहा है स्टार्टिंग में, मार्केटिंग थोड़ा धीरे धीरे पैसा बना के दे रहा है. बट इफ़ यू टेक माई ओपिनियन, डोंट रन आफ्टर मनी. मतलब आई ऑनेस्टली से डोंट रन आफ्टर मनी. डू
वट एवर थिंग मेक्स यू हैप्पी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सेल्स, गो फॉर सेल्स. पैसा कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कमाओ, बट आपको वो काम में मज़ा आना चाहिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मार्केटिंग बट यू आर रनिंग आफ्टर सेल्स जस्ट फॉर मनी, दैट्स बैड. कर लोगे आप 6 महीने कमा लोगे, 8 महीने कमा लोगे, साल कमा लोगे, फिर लॉन्ग टर्म तो नहीं हुआ ना. क्योंकि आप फॉर श्योर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर डूइंग जस्ट सेल्स फॉर मनी, तो आप एट द एंड बोर हो जाओगे. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, चाहे मार्केटिंग की बात ले लो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मार्केटिंग, इट विल टेक टाइम, 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, बट एट द एंड यू विल बी मेकिंग गुड मनी. और जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सब तो की है ही है. अगर आप ये कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहोगे तो एट द एंड आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल. पेशेंस इज द की टू सक्सेस. 100%. मतलब फॉर श्योर यू विल बी सक्सेसफुल. अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो और अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, ज़बरदस्ती आपको उठा के नहीं भेजना चाहिए किसी को, तो यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर. ये जो आपने चीज़ बोली कि इंटरेस्ट के साथ करो ना, ये ऐसा हो जाता है कि जब भी आप कुछ अपना ना हॉबी कर रहे हो या फिर जो कुछ चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, you know, if I take the example from cricket, if you look at Jimmy Anderson, he's 43, राइट. he's playing cricket. राइट. I mean, he's just not ready to retire, man. मतलब इज फॉलोइंग हिज पैशन ना, उसका हाँ. पैशन है, वो कर रहा है. पैशन के लिए काम करने में कभी किसी को एंड डेट आएगी नहीं, कभी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही नहीं भाई. Right. अगर आपको पसंद मार्केटिंग है, आप सेल्स कर रहे हो, तो आपका सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ बहुत जल्दी जाएगा. आ 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या करोगे? अभी तो Start getting frustrated. यार अभी तो आप 24 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो, व्हेन यू आर स्टार्टेड अर्निंग, 3 साल में बोर हो जाओगे, 24 में फिर क्या करोगे? आपको तो काम करना है 50-60 साल की उम्र तक. जब आप बोर ही हो जाओगे तो कैसे कर लोगे काम भाई? आप फ्रस्ट्रेटेड फील होना स्टार्ट कर दोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, तो वो चीज़ आपको चुभेगी बाद में. तो इट्स बेटर फॉलो व्हाट यू लव, मनी विल फ्लो फॉर श्योर. सर एक और चीज़ कि सेल्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स, इट्स हार्डकोर सेल्स. यू हैव टू डू, you either have to do cold calling or do door-to-door selling. But could you explain 3 or 4 career prospects that are there in marketing? Like वो जॉब के नेम्स या फिर वो कौन से करियर्स बना सकते हैं, सो दैट एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई सेल्स करो, ले भाई बॉटल खरीद लो, मैंने सेल्स कर दी. मार्केटिंग में कौन सी जॉब्स आती है? मतलब जो मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट आता है पूरा का पूरा, तो लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग, वही जो मैंने बताया स्टार्टिंग में मिथ, लोगों को लगता है मार्केटिंग ओनली एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग करना है वही तो मार्केटिंग है. बट नहीं भाई, जो मार्केटिंग एक टीम है ना, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है मार्केटिंग टीम का, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं. इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम, आप समझो आपने एक मार्केटिंग का होर्डिंग देखी, वो तो हो गई मार्केटिंग, बट जो उस होर्डिंग को बना रहा है वो भी तो एक बंदा है. दैट इज ग्राफिक डिजाइनर फॉर यू, फॉर अ कंपनी, वो भी तो एक बंदा है. यू कैन स्विच टू ग्राफिक डिजाइनिंग. इफ यू लव टू डिजाइन, यू कैन स्विच टू ग्राफिक डिजाइनिंग. उसके बाद आप किसी एड फिल्म देख रहे हो किसी टीवी पे, किसी भी ब्रांड की, तो वो भी तो कोई बना रहा है ना, वो एक वीडियो एडिटर है जो आपके लिए वो एड फिल्म्स बना रहा है, एडिट कर रहा है पूरा का पूरा. काफ़ी यूनिक सा वर्ड लग रहा है, एड फिल्म्स. एड तो छोटे से होते हैं, फिल्म तो लंबी होती है. हाँ. कैसे? नहीं, एड फिल्म्स बेसिकली भाई, एक तो हो गई एड, छोटे से नहीं होते वो, बम्पर एड्स होती हैं जो 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड होते हैं. एड फिल्म्स होते हैं जो डिजिटल एड फिल्म्स होती है ना बेसिकली. तो फिल्म्स आप 3-3.5 घंटे वाली फिल्म्स की बात कर रहे हो, और उनसे नहीं, एड्स को भी फिल्म्स ही बोला जाता है, जो कि 1 मिनट की, 40 सेकंड की होती हैं, टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट और वो सब, जो आप टीवी पे नहीं देखते, बट हाँ आप देते हो, मूवी हॉल में जाते हो, मूवी हॉल से पहले वो एड्स आती है ना जो बड़ी होती हैं थोड़ी सी, वो एड फिल्म्स कहलाती हैं बेसिकली. प्रोडक्ट फिल्म्स हो गई, वो सब कुछ हो गया. तो वही कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो वो एडिटर हो गया, वो वाली आपके पास जॉब हो गई. फिर मार्केटिंग के अंदर ही मैं आपको बताऊं तो स्ट्रैटेजी का एक अलग पार्ट होता है, जो टीम कैंपेन्स बनाती है, आप वो वाली फील्ड चूज कर सकते हो. फिर अकाउंट मैनेजर एक अलग होता है जो क्लाइंट सर्विसिंग करता है पूरी की पूरी, क्लाइंट से सारा कोऑर्डिनेशन करता है, टीम को मैनेज करता है पूरा का पूरा. आप वो फील्ड ऑप्ट कर सकते हो. देयर आर अ लॉट मोर फील्ड्स इन द मार्केटिंग विच यू कैन ऑप्ट फॉर. ऐसा नहीं है कि सेल्स में डिफरेंट फील्ड्स हैं तो मार्केटिंग में सिर्फ एक ही फील्ड है, ऐसा नहीं है. मार्केटिंग, वही आपकी जो बता रहा था मिथ, ये मिथ ही है कि मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज़ है. एडवर्टाइज. मार्केटिंग के अंदर पूरा प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेस में जा सकते हो, विच एवर यू लव. एंड वी हैव AI, वी हैव गूगल, वी हैव सो मैनी ऑप्शंस. आई मीन ये पहले नहीं होता था. पहले बोला मार्केटिंग है, हाँ भाई जाओ प्रिंटिंग प्रेस में जाओ, मार्केटिंग करनी है, न्यूज़पेपर में छाप दो, ऐड खत्म हो गई मार्केटिंग. बट नाउअडेज यू हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस. इट्स जस्ट अबाउट लाइक ओशियन है, उसमें से ग्लास ऑफ वाटर अपने हिसाब से निकालना है, निकाल लो. राइट. पूरा समुंदर है, जो समुंदर. आपको पानी जोन सा ग्लास पीना है वो ग्लास भर के वो आप भर के पी लो. राइट. वेरी राइटली सेड. बात कर रहे हैं और AI की बात ना हो तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा. आई थिंक AI ने पूरे मार्केट को, पूरी इंडस्ट्रीज़ को डिसरप्ट कर रखा है. कॉलेज के असाइनमेंट्स ChatGPT से हो रहे हैं, ठीक है. उसके बाद में कॉर्पोरेट ईमेल्स उससे हो रहे हैं. हाउ इज़ AI इम्पैक्टिंग मार्केटिंग एंड सेल्स राइट नाउ? सो मतलब मैं आपका पॉइंट कट करूंगा यार, मार्केट ने इंडस्ट्री को डिसरप्ट नहीं करा हुआ. AI इज हेल्पिंग मार्केट.
इट्स जस्ट वो आपका नज़रिया है, आपको किस नज़रिए से उसे देखना है. लोग उसकी हेल्प नहीं ले रहे, पूरा उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, विच इज़ बैड. जैसे आपने बोला कि कॉलेज के असाइनमेंट चैट जीपीटी से हो रहे हैं. मैं नहीं कहता कि चैट जीपीटी की हेल्प लेना गलत है, आप चैट जीपीटी की हेल्प लो, बट चैट जीपीटी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप वो इन्फॉर्मेशन उससे लेके उसको अपनी इन्फॉर्मेशन में ग्रैब करने के लिए हेल्प करो, उसकी हेल्प लो, तो वो ठीक है. कुछ जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको, मैं एक चीज़ मानता हूँ यार कि एआई आ गया है मार्केट में, ठीक है, अगर वो आपको किसी एक जो 2 घंटा आपको कुछ एक आर्टिकल लिखने में लग रहे हैं, वो आपको अगर 5 सेकंड में दे के करके दे रहा है, 10 मिनट में करके दे रहा है, जस्ट यू हैव टू पुट राइट इन्फॉर्मेशन टू हिम, अगर वो आपको करके दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट का में काम हो गया, 10 मिनट का करके चेप दो, ये मत करो. 10 मिनट उसके लो जो उसने एआई में आपको लगे, उसके बाद 15-20 मिनट अपने दो जो उसको पूरा रिफ्रेम अपने हिसाब से करो, तब एआई ठीक है. अब आपका 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो गया, तो वो आपको हेल्प हो गई. बट आप सोचो कि मैं 10 मिनट में करके बस चेप के दे दूंगा, वो गलत है. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एआई, टेक हेल्प फ्रॉम एआई, मेक एआई योर फ्रेंड. और जो एक बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में भाई, कि लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि उन्हें लगता है कि एआई जॉब खा जाएगा. तो भाई एआई इज़ नेवर गोइंग टू रिप्लेस अ पर्सन, अ ह्यूमन. एआई इज़ नॉट अ ह्यूमन, एआई इज़ अ human made, basically artificial intelligence. So it's never going to like eat some person's job, या किसी की जॉब नहीं खा रहा है एआई. इट्स जस्ट एक बंदा ही है जो बंदे की जॉब खा रहा है विद द यूजिंग ऑफ एआई. लेट्स टेक एग्जांपल, आप और मैं बैठे हैं, हम दोनों एक ही कंपनी में सेम लेवल पे काम कर रहे हैं. आप एआई यूज़ करने के लिए तैयार नहीं हो और मैं कंप्लीटली एआई यूज़ कर रहा हूँ, तो जो काम आप 2 घंटे में कर रहे हो, मैं वो कंपनी को 20 मिनट में करके दे रहा हूँ. तो उस कंपनी के लिए एफिशिएंट कौन हो गया? मैं हो गया. तो मेरा प्रमोशन होगा. एआई का प्रमोशन नहीं हो रहा. एआई ने आपकी जॉब नहीं खाई, मैंने आपकी जॉब खाई, क्योंकि मैंने एआई यूज़ करके आपसे बेटर काम आपसे पहले कर दिया. AI is only the tool. एग्जैक्टली, इट्स ओनली द टूल. यू हैव टू अडेप्ट इट. अडेप्ट करो, आगे बढ़ते रहो उसके साथ, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे से बताया आपने कि मतलब AI आपकी जॉब नहीं खा रहा है, वो पर्सन है पर्टिकुलर जो who is in your competition that is taking away a job. Right. Like उसका AI का यूज़ करो एंड you can move up the ladders. यार एआई हो गया, मैं कह रहा हूँ आज ये ट्रेंड है मार्केट में, कल को कोई दूसरा ट्रेंड आएगा. अभी ट्रेंड ही है ना 6 महीने 8 महीने से, कल को कोई दूसरा ट्रेंड आएगा, परसों तीसरा ट्रेंड आएगा. तो ये इंडस्ट्री है जो रिवॉल्व कर रही है ट्रेंड्स के अराउंड. आपको अपने आप को उसी इंडस्ट्री के साथ साथ अपने आप को भी इवॉल्व करना है और ट्रेंड्स को फॉलो करते रहना है. दैट्स इट, सिंपल एम है. मतलब इंडस्ट्री रिवॉल्व कर रही है ट्रेंड्स के अराउंड, आप भी थोड़ा सा इवॉल्व कर जाओ ट्रेंड्स के अराउंड, अडेप्ट करो चीज़ें जो जो नहीं आ रही हैं. आपकी तो अपस्किल हो रही है, आप अपनी अपस्किल करो, अपना पैसा कमाओ. और ये ट्रेंड तो आई मीन कीपिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नाउअडेज इट्स हैपनिंग इन द स्पीड ऑफ सेकेंड्स. लाइक कल मैं चैट GPT 4 यूज़ कर रहा हूँ, भाई 10 मिनट बाद बोलता है अपडेट कर ले वरना मैं वर्क नहीं करूँगा तेरे लिए. भाई ये आ गया. पहले चैट जीपीटी आता था, आजकल VO3 आ गया है. चैट जीपीटी पहले करते थे, आप सिर्फ टेक्स्ट लेते थे, इमेजेस लेते थे, अब वो इमेजेस को वीडियो कन्वर्ट के लिए VO3 आ गया है, जो नया चल रहा है. मैं आपकी सेम शक्ल का एक बंदा बना सकता हूँ आपकी शक्ल डाल के, जो और आप कुछ और कर रहे होगे वीडियो के अंदर. समझो, मैं आपको कोका कोला पिला सकता हूँ, मैं आपको चश्मे बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. आप हो ही नहीं वहाँ पे, आपका शूट ही नहीं है वो. ये सब VO3 कर रहा है आपके लिए. अब हम इसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, जस्ट गिविंग विद एग्जांपल. अब लोग VO3 भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रॉम्प्ट डालना बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट वीडियो के लिए. हमने उसका क्या हैक निकाला, एक जो रिसेंटली हमने एक, ट्रस्ट मी, जो मैं कहता हूँ कि कभी लर्निंग नहीं रुकती है, एक इंटर्न ने ये हैक निकाला. जनरल मतलब हैक नहीं है, बहुत लोग कर रहे होंगे यार, हमें थोड़ा टाइम पहले ही पता चला. हमने साला VO3 का प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से ही मांग लिया. हमने चैट जीपीटी को इमेज दी कि आई वांट टू मेक वीडियो फ्रॉम दिस इमेज, गिव प्रॉम्प्ट फ्रॉम VO3. चैट जीपीटी ने मेरे को 1 मिनट में प्रॉम्प्ट दिया, मैंने VO3 में डाला, 5 मिनट में मेरी वीडियो रेडी. It's as simple as that. You have to adapt with the technology that's coming day by day. You can't say कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं इसके बिना ही कर दूंगा. आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा, बट जो चीज़ 20 मिनट में हो सकती है उसको 4 घंटे क्यों लगाने. सही. एंड सर आपने एक बात कही कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट, बिकॉज यू नो फॉलोइंग द ट्रेंड, पहले हम यूट्यूब देखते थे, वी वर एबल टू वॉच अ वीडियो ऑफ ड्यूरेशन 28 मिनट 30 मिनट्स. नाउ वी आर स्क्रॉलिंग इवन अ 10-second रील. इतना भी पेशेंस नहीं रह गया है. सो व्हेन इट कम्स टू यूजिंग चैट GPT फॉर योर कॉलेज असाइनमेंट, आई थिंक इफ यू यूज ओनली चैट GPT फॉर द असाइनमेंट सबमिशन, इट्स काइंड ऑफ और समवेयर इट्स killing your creativity. You're not For able to sure. think, you're just copying and pasting. For sure, that's bad. मतलब आप अपने आप से उसका चीट कर रहे हो. दिख नहीं रहा है, लेकिन इट्स रियली गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल इन द लॉन्ग रन. 100% आई एग्री ऑन दिस पॉइंट. लोग अपने आप से ही चीट कर रहे हैं भाई. मतलब आप, मतलब मैं तो यही कहता हूँ यार, अगर आप कॉलेज, वैसे तो कॉलेज वाले एग्जामों में आपको क्यों ही चैट GPT और ये सब यूज़ करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओ. आप यहाँ तो चीट कर लोगे, वही हमारे बचपन में हमें भी सिखाया जाता है. स्कूल में ट्यूशन में चीटिंग करते थे हम,
तो वो ट्यूशन टीचर यही कहता था यार ट्यूशन में तो चीटिंग कर लोगे, आगे एग्जाम में क्या करोगे? सेम वे सिनेरियो, कॉलेज में तो चीटिंग कर लोगे, चैट जीपीटी कर लोगे, आगे जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको लगेगा कि यार लोगों को तो बहुत कुछ आता है, मेरे को आता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो चुका हूँ। तो ये डिपेंडेंट मत हो, हेल्प लेनी है ले लो, हेल्प लेना गलत नहीं है, बट ट्राई कि आप जितना अपना इनपुट डालो उसके अंदर, क्योंकि वो उसमें ह्यूमन माइंड नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन माइंड के आइडियाज़ अलग ही हैं भाई, वो चीज़ है। तो डोंट जस्ट रिलाई ऑन दैट, दैट इज़ बैड। ऑल्सो कमिंग बैक टू योर रील वाला पार्ट, मी एज अ पर्सन भाई आई एम अगेंस्ट इट। आप देखोगे ये रीलें चल रही हैं 10-10 सेकंड की, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हम भी बना रहे हैं ब्रांड्स के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड की, बट जो एक स्टोरी टेलिंग होती थी पहले वो खत्म हो चुकी है। स्टोरी टेलिंग, टाइम ही नहीं है ना इतना, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस, वो सब खत्म हो चुका है, अब बस बेचने में लगे हैं सब। दैट इज बैड आई फील। सर टॉकिंग अबाउट these AI things and getting redundant या फिर not being in the trend. So being a marketing student, like मेरे पास अभी skills है which matches today's demand. Right. But 4 years down the line, 5 years down the line, what do I do to make sure that I stay relevant in the industry? Because you look at Kodak, it got replaced. You look Right. at Nokia, it's nowhere now. Right. I mean, so चीज़ें आ रही है, रिप्लेस होती जा रही हैं. So what can we do to make sure that we are relevant? We stay there. Like Apple है, मैं भी यही updates बोलने करता लगा जा था। रहा है. एप्पल रिप्लेस हुआ क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करा ना टाइम के साथ साथ। नोकिया ने अपने आप को अडेप्ट ही नहीं करा टाइम के साथ साथ। ठीक है, जो भी बोल रहे हो कोडाक, जो भी ये चीज़ें हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं करा टाइम के साथ साथ, वो आउट ऑफ द मार्केट हो गए। सेम वे सिनेरियो, आपको इंडस्ट्री के साथ साथ अपने आप को चीज़ों के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। टेक एग्जाम्पल ऑफ एप्पल ना भाई, स्टिल नंबर 1 फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स, स्टिल, चाहे पिछले इफ़ यू टॉक अबाउट सीरीज 12 के बाद से सेम स्ट्रक्चर बना रहा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 भी ग्लिम्स आ गए हैं, सेम स्ट्रक्चर है, स्टिल बिक रहा है। एंड आई थिंक हम इस क्वेश्चन को उसके आपके STP से भी रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज एप्पल ने अपना STP इतना बढ़िया तरीके से करा है कि उनका मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है. कहीं भी नहीं जा रहा भाई. इवन उन्होंने इतना फोमो क्रिएट कर दिया लोगों के लिए, इतनी वो दिखा दिया कि जिसकी 10,000 रुपये सैलरी भी है ना या 30,000 रुपये सैलरी भी है, वो भी EMI पे एप्पल उठा रहा है भाई. It has become a क्योंकि उन्होंने commonality. वो बना दिया ना, एक नीड बना दी है कि आप एप्पल नहीं ले रहे तो आप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे मार्केट में. एप्पल आप यूज कर रहे हो. फैक्ट है भाई, सैमसंग इतने महंगे महंगे फ़ोन भी बना रहा है, फोल्ड भी लिया, ठीक है, सब कुछ करा, बट वो चला ही नहीं, 1 साल भी नहीं चला. तो क्या फ़ायदा? फिर बंदा कहता है एप्पल ही ले लो यार, कम से कम रिलायबल तो है, 4 जो साल पीछे वो साइन होता है एप्पल आधा कटा हुआ, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू, और वो क्रिएट कर रखा है कि इफ आई एम हैविंग एन एप्पल आई एम मतलब समवेयर स्टैंडिंग आउट इन द मार्केट. मतलब आई एम एबल टू फिट इन बिटवीन एवरीवन. हाँ, दूर रहे, मेरे पास में, मेरा लेवल हाई है. वो वही है कि उस तरीके से उन्होंने ऑडियंस कर दी है. दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. STP में तो एप्पल का कोई साइन ही नहीं कोई नहीं है. कई ब्रांड्स हैं, नाइकी वाइकी, इनका किसी का कोई नहीं है, सब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं. एंड यहीं से हम एक इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं कि डोंट बी इन अ रश. थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी यू नीड टू हैव अ बिट मोर पेशेंट, बट once you crack the concept of STP, once you have the market that works for you, it is going to do wonders. Maybe it will take some time, but definitely in the long run you will be the winner. You'll be in the benefit. Win-win situation for you. Now comes my favorite part. We'll do some rapid fire round. Time to relax a bit. Enough of serious talks, I guess. Who gives more creative excuse? Sales team or clients? भाई दोनों ही देते हैं. सबका काम है एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना. सेल्स अच्छी नहीं हुई तो वो मार्केटिंग टीम पे डाल देते हैं पूरा कि यार मार्केटिंग टीम ने अच्छा काम नहीं करा. मार्केटिंग टीम सेल्स टीम पे डालती है यार सेल्स टीम ने काम अच्छा नहीं करा, हमने तो अच्छा करा था. तो कोई, दैट्स द फैक्ट. नो वन इज, इफ अ पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस, दैट्स द जेम ऑफ अ पर्सन. One brand you would love March's production to market in the future? I would love to market Apple for sure. Writing email or attending board meetings? For sure, board meetings. They are more creative. They are more creative. You get to listen to people, listen to their ideas, make something good out of it. For sure. Describe marketing in one word. For me, if you ask me as a person, it's a responsibility for me. Responsibility. Marketing, basically, if someone is giving me their brand to market, it's my responsibility to market it in the best way. So that's the responsibility for me. If not marketing and sales, what would Archit sir be doing right now? If not marketing and sales, Yep. maybe I would have been a cricketer. मतलब I love to play cricket.
I have played cricket till state level and all of that stuff at my school times and all of that, but due to time and everything, it left behind. But if I was not doing this, for sure, I would be playing cricket. Very good option, cricket. Nice. This seriously was an insightful session. It went beyond my expectation, to be very honest. I have gone through these concepts, STP, your sales cheat codes and everything, but the way you have described it, I think giving practicality to concepts is very important. Because आप bookish language कर सकते हो, but when you get to learn it in practical terms, तभी आपको ज़्यादा better समझता है. So just a quick recap for our listeners. Marketing and sales are different but deeply connected. JD को carefully read करो. Read between the lines. Titles can be misleading. Sales can offer fast cash, but marketing builds a brand. STP is just not a theory, it's sales fuel. AI is not a tool. AI is a tool, not a threat. Make it your tool and lead the world. Upskill karo continuously, else you will be outdated. Okay, and if you found this session, please like, share, subscribe, share this with your friends, and stay tuned till the next podcast. Take care. Thank you.